بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ برادران اسلام، مرزا محمد علی جیلمی اس دور کا بہت بڑا فتنہ عظیمہ ہے کہ عرصہ دراز سے وہ مشاجرات کے بہانے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخیاں اور توہین کر رہے ہیں۔ اب تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم صدقہ پنجا چارہ دا اس کو فتنہ جو ہے، فتنے کی آگ بجھانے کے لیے مجاہدین اہل سنت، علماء اہل سنت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ لیکن جو اس نے گان ڈالا ہے ان میں سے اگلے دن اس کا ایک بیان سنا جس میں اس نے صرف حضرت امیر معاویہ ہی نہیں، صرف حضرت طلحہ زبیر ہی نہیں، بلکہ اس نے اہل بیت کرام کی بھی بے ادبی اور توہین اور گستاخی کی ہے۔ اہل بیت سے مراد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو ہستیوں کی بھی اس نے توہین کی ہے۔ ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اہل سنت پر کہ جو سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں، آل و صحاب دونوں کے ادب اور محبت کو لے کے چل رہے ہیں اور دونوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت کا جو رستہ ہے صراط مستقیم ہے، اس کے ارد گرد دو گڑھے ہیں، ایک رافضیت کا گڑھا، ایک خارجیت کا گڑھا۔ جو بندہ بھی تھوڑا ڈاما ڈول ہوتا ہے اور اپنا وہ موقع پیش کرنا چاہتا ہے سلف الصالحین سے ہٹ کے، جو قرآن و سنت اور صحابہ کے معاملات کے جو فیصلے ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی اپنی من مرضی کا، اپنی خواہش نفس کو لے کر اہل بیت کی محبت کا جھوٹا نعرہ لگا کے یا صحابہ کی محبت کا جھوٹا نعرہ لگا کے وہ کسی ایک کے طرفداری کرتا ہے، دوسرے کے خلاف بات کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بدبختی سے، بربادی سے، جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ تو اسی طرح یہ مرزا جیلمی ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ صرف یہ نہ رافضی ہے نہ صرف خارجی ہے، بلکہ جتنی بھی اس وقت بد مذہبیت ہے سب کا عرق نچوڑ اور مکسچر جو ہے یہ مرزا جیلمی ہے۔ اب دیکھیں حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر یہ بار بار حضرت امیر معاویہ صحابہ صفین کی توہین کرتا ہے، لیکن اب اس نے دو قدم آگے اٹھائے اور بدبخت نے اہل بیت پر بھی حملہ کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے، جس طرح میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت الفاظ میں اہل سنت کے موقف کو پیش کیا کہ واتفق اہل السنہ علی وجوب الکف عما شجر بینہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم، کہ اہل سنت نے جب ارشادات خدا اور فرمودات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنے، صحابہ کا بلند مقام سنا کہ صحابہ کرام بہت اعلیٰ ہستیاں ہیں، انبیاء کے بعد مقام صحابیت ہے، ہم بہت بعد کے لوگ ہیں، تو انہوں نے اللہ رب العزت اور رسول کریم کے ارشادات کی وجہ سے صحابہ کرام چونکہ بزرگ ہمارے، جب ہم اپنے باپ دادا، باپ چاچا، ماں باپ کے اختلافات کے اندر آنا بے ادبی، توہین، بدتمیزی سمجھتے ہیں، تو جماعت نے صحابہ کرام کو اپنی بزرگ ہستیاں سمجھتے ہوئے ان کے معاملات میں بھی زبان چلانے کو بے ادبی اور ایمان کے لیے ہلاکت قرار دیا۔ لہٰذا ایمان کی بچت اسی میں ہے کہ بندہ سلف الصالحین انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے مشاجرات صحابہ کو بالکل نہ چھیڑیں۔ جو بھی چھیڑے گا اس کا حال مرزا جیلمی جیسا ہوگا کہ صرف وہ حضرت معاویہ کا دشمن ہی رہے گا، وہ مولا علی کا بھی دشمن ہوگا، وہ حسن پاک کا بھی دشمن ہوگا، دیگر صحابہ کرام پر بھی زبان چلانا اس کے لیے ضروری ہو جائے گی جب وہ منہ کھول دے گا، جس طرح مرزا کا کھلا ہوا ہے۔ اب یہ بدبخت ایسا ہے یا اپنے آپ کو معاذ اللہ صحابہ سے بھی اوپر سمجھتا ہے، ایسے بات کرتا ہے جس طرح چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی بات نہیں ہوتی، جس طرح یعنی اپنے جو گھر والے ہوتے ہیں، جو ماتحت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بندہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا جو یہ بدبخت صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں استعمال کرتا ہے۔ جو اس نے پچھلے دنوں میں امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں زبان استعمال کی، مولا علی شیر خدا کے بارے میں اس نے جو بھی میں بیان پیش کرنے لگا اس میں استعمال کی ہے، اسی طرح کر کے دیگر صحابہ کرام کے بارے میں، تو آپ اس کا یہ بیان سنیں جس پر ہم کلام کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اسلام نے باغی جماعت ڈکلیئر کیا ہے حضرت عمار کے قاتلین کو۔ اب یہ کہنا کہ وہ تو حضرت عمار کے قاتلین تو جنگ صفین لڑنے والے تھے، تو اس میں جنگ جمل والے کیسے آگے؟ وہی جنگ جمل والے تو پہلے آئے ہیں۔ حیران کن میں آپ کو بات بتاؤں کہ جنگ صفین تو حضرت علی نے مسلط کی ہے نا، بات بتاؤں کہ جنگ صفین تو حضرت علی نے مسلط کی ہے نا، کہ جنگ صفین تو حضرت علی نے مسلط کی ہے نا حضرت معاویہ کے اوپر، کیونکہ وہ بغاوت پہ اتر آئے تھے، وہ بیعت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جنگ جمل جو ہے نا، یہ حضرت عائشہ طلحہ زبیر نے حضرت علی کے اوپر مسلط کی ہے۔
लेकिन जंगे जमल जो है ना, ये हजरत आयशा तलहा जुबैर ने हजरत अली के ऊपर मुसल्लत की है। लेकिन जंगे जमल जो है ना, ये हजरत आयशा तलहा जुबैर ने हजरत अली के ऊपर मुसल्लत की है। नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनान अहले बैत। आपने सुना कि ये कहता है कि हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कातिलीन अम्मार को बागी गिरोह कहा है, और उसमें सिर्फ असहाबे सिफ़ीन नहीं आते बल्कि असहाबे जमल पहले आते हैं। नाउज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह। फिर कहता है हैरान कुन बात, कौन सी हैरान कुन बात? कहता है कि जंग सिफ़ीन तो मुसल्लत की थी मौला अली ने, और जंग जमल मुसल्लत की है आयशा तलहा ज़ुबैर ने। हमारे नज़दीक इतनी बोलियाँ इसने बोली हैं, ये खारजियों वाली हैं या राफ़िज़ियों वाली हैं, यानी जो हलाकत वाले लोग हैं, जो हलाक होने वाले लोग हैं, उन वाली बोली हैं। यानी इन मामलात का ज़िम्मेदार किसी एक को ठहराना, ये या खारजियत में जाता है या राफ़िज़ियत में जाता है। अहले सुन्नत किसी एक हस्ती को ज़िम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि उनका इज्तिहाद समझते हैं, इज्तिहाद गर्दानते हैं। यानी ये कहना कि जंग सिफ़ीन के ज़िम्मेदार हज़रत अमीर मुआविया हैं, ये सारी हलाकतें उनके ज़िम्मे हैं, ये है राफ़िज़ियत। ये कहना कि जंग सिफ़ीन हज़रत अली ने मुसल्लत की, ये है खारजियत और नासबियत। और ये कहना कि ये दोनों जमातों का इज्तिहाद था, दोनों जमातें जनती हैं, दोनों को अल्लाह इज्तिहाद का अजर अता फरमाएगा, उनका मामला रब रसूल की बारगाह में है, वो नेक नीयत है, वो एक आजमाइश के अंदर आ चुके थे, ये है सुन्नियत। अब इसने इस बयान के अंदर राफ़िज़ियत की ज़ुबान भी बोली है, खारजियत की भी ज़ुबान बोली है। बात इसने राफ़िज़ियत से शुरू की कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिफ़ीन वाले ही सिर्फ जो है वो हदीस अम्मार की मिस्दाक नहीं है, बल्कि जमल वाले भी हैं। और फिर इसका ये कहना कि जंग सिफ़ीन के ज़िम्मेदार हज़रत अली हैं, जंग जमल के ज़िम्मेदार जो है वो कौन है? आयशा तलहा ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। तो मुसल्लत कहना, ये ज़िम्मेदार कहना है। इसलिए जब कोई किसी चीज़ पर दूसरे पर मुसल्लत करता है तो ज़िम्मेदार वो होता है। तो मिर्ज़े के बकौल माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, ये जंग सिफ़ीन के अंदर जो कुछ हो उसके वह ज़िम्मेदार मौला अली हैं। अब दिन रात जो बंदे मिर्ज़े के जो है फॉलोअर्स और मिर्ज़े को इमाम समझने वाले और बहुत बड़ा अहले बैत का मुहिब समझने वाले और इस 15वीं सदी का बहुत बड़ा मुज्तहिद और इमाम आज़म समझने वाले, वो लोग जो राफ़िज़ियत ज़द हैं, जो दिन रात ये कहते हैं कि मुआविया ने जंग की, मुआविया लड़ा, मुआविया ने जंग की, मुआविया लड़ा, मुआविया ने जंग की, इतने जो है वो शहादतें हुई, इतने बंदे कत्ल हुए, ये साहब की ज़िम्मेदारी मुआविया पे जाती है। अब वो लोग मिर्ज़े के इस बयान के बारे में अपनी क्या राय पेश करेंगे, क्या तसव्वुरात पेश करेंगे? क्या ये कहना कि जंग सिफ़ीन मौला अली ने मुसल्लत की, क्या मौला अली की तौहीन नहीं है? और अगर ये मौला अली की तौहीन है तो ये कहना कि जंग जमल तलहा ज़ुबैर आयशा ने मुसल्लत की, ये उन हस्तियों की तौहीन है। मुबारक वाले सुन्नत को जो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते, वो किसी एक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराते इस तरह के अल्फाज बोलने से कि जो बेअदबी के ज़ुमरे में जाते हैं, जिनसे राफ़िज़ियत या खारजियत की बू आती है, वो कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ताला हमारे ज़हन और ज़ुबानों को हमेशा हिफाजत के अंदर रखे। अगर खुदा ना करे हमसे कोई ऐसा लफ्ज़ बोला जाए, अल्लाह हमें फ़ौरन तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इस बयान के अंदर इस बदबख्त ने एक तो ये मौला अली शेर खुदा की तौहीन की कि मुसल्लत की जंग हज़रत अली ने, हम कहते हैं ये तौहीन है। किसी का कहना कि जी हज़रत मुआविया ने मुसल्लत की या आयशा ने मुसल्लत की, तलहा ज़ुबैर या मौला, किसी एक के बारे में कहना मुसल्लत की, ये हमारे नज़दीक बेअदबी गुस्ताखी है। बल्कि हम इज्तिहादी वो दौर समझते हैं, इज्तिहादी जंग समझते हैं, एक आजमाइश समझते हैं। और इसके बारे में बेशुमार दलाइल मौजूद हैं कि वो खुद कह रहे थे हम आजमाइश के अंदर हैं, हम आजमाइश के अंदर हैं। और इस पूरे दौर के बारे में, जंगों के बारे में पूरी तफसील है बुखारी मुस्लिम के अंदर। रसूलुल्लाह ने कहा था मेरी उम्मत की 2 जमातें लड़ेंगी, दावत एक होगी। फिर फरमाया उन 2 में से एक गिरोह खारिज होगा, खारजियों से जो किताल करेगा वो हक से ज़्यादा करीब होगा, हक पे दोनों होंगे। ये भी हदीस मुबारक सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है। और वो हदीस जो मुत्तफ़क़ुन अलैह है, हदीस सुलह इमाम हसन वाली, लअल्लल्लाहु युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, ये हदीस पाक, ये सारी हदीसें अगर मद्देनज़र रखें तो पता चलता है कि ये इज्तिहादी जंग है। फिर मौला अली का जंग को बंद कर देना, कुरान कहता है फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह। फिर मौला अली का दोनों जमातों को, असहाबे सिफ़ीन में दोनों तरफ से फ़रीक़ैन के मक़तूलीन को जन्नती कहना, उनके जनाजे पढ़ना, उनके माल ना छीनना, ठीक है ना। वो जो कुफ़ार के साथ जंग के इख्तिताम पर जो सलूक होता है, ना मौला अली ने जमल में किया ना सिफ़ीन में किया। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को साबित करती हैं। फिर हज़रत इमाम हसन का सुलह कर लेना, फिर पूरी उम्मत का मुत्तफ़िक़ हो जाना हज़रत मुआविया पर, उनकी इमामत खिलाफत पर, ये सारी चीज़ें इस बात की गवाही देती हैं कि ये जंग इनादी नहीं थी बल्कि ये इज्तिहादी थी। तो इस वजह से करके हज़रात गिरामी इसने ये झूठ ये इस मलऊन ने बोला है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कि जमल जो है वो मुसल्लत की,
तला ज़ुबैर आयशा ने रदी अल्लाह ताला अन्हुम मलऊन शख्स। ये तो तारीख़ का ऐसा ये मुत्तफ़क़ुन और इत्तेफ़ाक़ी ये पहलू है कि बसरा के मकाम पर जब दोनों लश्कर इकट्ठे हुए थे, क़त्अन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तला ज़ुबैर मौला अली से जंग नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो एक मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, असल में मौला अली की हमायत चाहते थे। और फिर जब वहाँ इसी वजह से, और यही वजह थी कि जब आपस में बातचीत हुई, सुलह होगी कि भाई हम तो हमारा मिशन एक है, तो फिर उसके बाद ये तारीख़ की पक्की बात है कि उसके बाद जंग छेड़ने वाले कातिलीन उस्मान हैं, जिनको पता चल गया कि हमारे कत्ल पर सुलह हुई है। वहाँ उन्होंने ये मीटिंग की, कहा कि अली को भी उस्मान के साथ मिला दो, तबरी पढ़ लो। इस वजह से करके ये कहना कि उन्होंने मुसल्लत की, जानबूझ के मजबूर किया हज़रत अली को जंग जमल के लिए। तला ज़ुबैर ने, ये बिल्कुल झूठ है, किस्ब है, और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अहले बैत हैं। मिर्ज़ा जेलमी सिर्फ सहाबा का नहीं, हज़रत मुआविया का नहीं, हज़रत अम्मार बिन यासर का ही नहीं, बल्कि ये मलऊन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अहले बैत का भी गुस्ताख है, मौला अली शेर खुदा का भी गुस्ताख है, इमाम हसन मुज्तबा का भी गुस्ताख है, रसूलुल्लाह का भी गुस्ताख है। हम इसके बाद जो इंशाअल्लाह इसके बारे में पार्ट्स जारी करेंगे, उसमें हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। आज की गुफ्तगू के अंदर सिर्फ इतना बताना था कि लोगों समझ जाओ, मरने से पहले पहले अहले सुन्नत के तरीके पे आ जाओ, इसी में निजात है। मुशाजरात सहाबा को मत छेड़ो, सहाबा इकराम के इख्तलाफात को छेड़ोगे, ईमान बर्बाद कर बैठोगे, या रफ़ज़ियत के गड़े में गिरोगे या खारजियत के गड़े में गिरोगे। लिहाजा इसी में ईमान की बचत है, इसी में बका है। जैसे कि गौसे पाक ने फरमाया कि वत्तफ़क़ अहलुस सुन्ना अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम, कि अहले सुन्नत मुत्तफ़िक़ हो गए हैं कि सहाबा के इख्तिलाफ़ में ज़ुबानें बंद रखना वाजिब है। व इज़हार फ़ज़ाइल, उनके फ़ज़ाइल का इज़हार किया जाएगा। यहाँ हज़रत मुआविया का बिल्कुल इस्तिस्ना नहीं हुआ, कहीं किसी ने भी नहीं किया कि भाई फ़ज़ाइल सिर्फ दूसरों के बयान होंगे, हज़रत मुआविया के नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर, फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर, तारीख़ के अंदर जो कुछ उलमाए दीन ने बयान किए हैं, सूफिया ने जो बयान किए वो बयान होते रहेंगे। बाद लोगों का ये रंग देना और ये वसविसा डालना, प्रोपेगेंडा करना कि ये बढ़ाते हैं, मौला अली से बढ़ाते हैं, ये अहले बैत से बढ़ाते हैं, ये बिल्कुल किस्ब महज़ है। हम कहते हैं जो बढ़ाए वो भी मलऊन, जो अहले सुन्नत पर ये इल्ज़ाम लगाए वो भी मलऊन। हम जानते हैं जब रब फरमाता है ला यस्तवी मिनकुम, कि तुम सब बराबर नहीं हो, तो हम कैसे अपनी तरफ से उनके दर्जे मुतय्यन कर सकते हैं? जिनको रब साबिक कहे, अव्वल कहे, हम उन्हें बाद में कैसे कर सकते हैं? जो अव्वल हैं वो अव्वल हैं, जो साबिक हैं वो साबिक हैं, जो बाद के हैं वो बाद के हैं, लेकिन हैं तो सबसे सहाबा। अल्लाह करीम तो सबसे फरमाता वा कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। ऐ मेरे नबी के सहाबा, जो तुम करोगे, जो तुमने करना है, अल्लाह जानता है, अल्लाह फिर भी तुझसे जन्नत का वादा फरमाता है। अब हमसे जन्नत का वादा इस तरह तो नहीं हुआ, तो वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अंबिया के बाद उनकी जमात है, तो लिहाजा हमारे लिए वो काबिल इज़्ज़त हैं, तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए। जब ज़माने का गौस कुतुब वैसे करनी, जैसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसे उनकी गर्द राह तक नहीं पहुँच सकते, तो हम क्या हैं? अल्लाह ताला अदब की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूफिया सलफ़ सालिहीन अहले सुन्नत के तरीके पे हमें हमारी नस्लों को क़यामत तक रखे, और सहाबा के मामलात में ज़ुबान बंद रखने की मौला ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।